Good morning, student. So see, already I have discussed 3 classes on complex numbers. Okay, on complex numbers already I have discussed 3 classes. So today I am going to start the 4th class of complex numbers. So first let me tell you already what I have explained in complex numbers. In complex numbers already I have explained about imaginary numbers, how imaginary numbers is introduced in the real life, and after that how I have discussed about complex numbers, how complex number has come from imaginary numbers. Then I explained the standard form of a complex numbers, and yes, in the earlier class I also discussed if two complex numbers are equal, then what happens. Whenever two complex numbers are equal, then what is going to happen in general. So these things already I have discussed. Okay, so one by one I have discussed. I gave you some homework also, and you have done it also. So see, next the part that I am going to discuss, that is conjugate. What is the next part? Conjugate of a complex number. One is conjugate. Next, conjugate of a complex number, modulus and argument. So these three things I will discuss now. Okay, what is the conjugate of a complex number, what is the modulus of a complex number, and what is the argument of a complex number. So see, before we know about these 3 things, first, that means before solving the questions, okay, so let us know that what is the meaning of conjugate, what is the meaning of modulus, and what is the meaning of argument of a complex numbers. ठीक है, देखो, सो हम लोगों को पहले जानना क्या जरूरी है कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या है. ठीक है, मोडुलस है, मोडुलस तो हम लोग निकल पाएंगे अगर मैं तुम लोगों को साम दे दूंगा, इफ आई गिव द फॉर्मूला. ठीक है, इमीडिएटली तुम लोग सॉल्व कर पाओगे. इफ आई गिव यू द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट, यू कैन डू इट. बट लेकिन साम सॉल्व करने से पहले लेट अस नो व्हाट आर द डेफिनेशंस, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग इन ओरिजिनल. Okay, so first let me tell you what is the meaning of conjugate, what is the meaning of modulus, and what is the meaning of argument of a complex numbers. ठीक है, अभी देखो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय व्हाट, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय z, and any complex number can always be written in the form of this part a plus ib, है कि नहीं. लास्ट टाइम में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन है दैट इज जेड, एंड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या लिख पाएंगे, इट कैन बी रिटन एज a प्लस आई इंटू बी फॉर्मेट, एंड दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म, है कि नहीं. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स. Okay, this is called the standard form of a complex numbers. Now see, और मैंने वो भी बोला था कि एक्चुअली z इक्वल टू a प्लस आई बी जो है वो क्या होता है. दिस a प्लस आई बी, इट इज व्हाट, इट इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर. आई टोल्ड यू. सो व्हाट इज द पॉइंट, दिस कैन बी रिटन एज a कॉमा बी, है कि नहीं. लास्ट टाइम पे मैंने ये डिस्कस किया था कि एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर इज a प्लस आई बी, दैट मीन्स a कॉमा बी जो है इट इज a प्लस आई बी. सो कोई भी पॉइंट अगर तुम ग्राफ पेपर से लेते हो, इफ इट इज 3,4, आई ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग. दिस इज व्हाट रियल पार्ट, दिस इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट. दिस 3,4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 प्लस 4i लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स.
This is a pair, but this pair can be written as 3 plus 4i. This 3 is what? It is the real part, and this 4 is what? It is the imaginary part. ये रियल पार्ट क्यों है? बिकॉज दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था. एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग रियल पार्ट भी बोल सकते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं. बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट? इमेजिनरी एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट? इज रियल एक्सिस. ठीक है. सो ये पार्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है. नाउ let us discuss the conjugate. Okay, after conjugate what I am going to discuss? Modulus. After that I am going to discuss about the argument. Now see, suppose मैं एक नंबर लेता हूँ. ठीक है. वो नंबर जो है वो 3 plus 4i ले लिया. 3 plus 4i ले लिया है कि नहीं? So देखो 3 plus 4i लेने का बाद पहले मैं डिस्कस करता हूँ. ये जो 3 plus 4i है, दिस कैन बी रिटन एज 3,4. 3 plus 4i कैन. सो अगर यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेता हूँ. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, है कि नहीं? सो 3,4, ये जो नंबर 3 plus 4i है, दैट मीन्स इट इज 3,4. 3,4 कहाँ पे होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4. So this is 3,4. So 3,4 is what? 3 plus 4i. ठीक है. So this point is 3,4. This point. अभी देखो ये जो 3, ये जो नंबर है 3 plus 4i, इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? इस नंबर का मॉडुलस क्या होगा? इस नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा? पहले वो हम लोग जान लेते हैं. ठीक है. क्योंकि उसको जानने का बाद ही हम लोग सम करने का टाइम पे हम लोग को वो चीज़ तो दिमाग में रहेगा कि ये चीज़ होता क्या है. ये जो कॉन्जुगेट है, ये जो मॉडुलस है, ये जो आर्गुमेंट है, वो चीज़ तो होता क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. अभी देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट. पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि कॉन्जुगेट क्या है. ठीक है. कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ जेड. कॉन्जुगेट ऑफ जेड. कॉन्जुगेट ऑफ जेड का जो नोटेशन है दैट इज कॉल्ड जेड बार. ठीक है. कॉन्जुगेट ऑफ जेड जो है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड का नोटेशन क्या है? जेड बार. इट इज द नोटेशन. जेड का जो कॉन्जुगेट है हम लोग किससे डिनोट करेंगे? उसका ऊपर बार लगाने से. दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट. नाउ सी उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये जो 3,4 है, देखो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. दिस इज एन ऑब्जेक्ट. अभी मैंने यहाँ पे एक क्या रख दिया? मिरर रख दिया. यहाँ पे क्या रख दिया? मिरर. और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया. तो अगर तुम ये जो ऑब्जेक्ट है 3,4, ये जो ऑब्जेक्ट है अगर तुम यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा कि नहीं? क्योंकि इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? ऑपोजिट टू द मिरर. वो मिरर का ऑपोजिट में फॉर्म होता है. सो ये मिरर कहाँ पे फॉर्म होगा? इसका ऑपोजिट में, मिरर का ऑपोजिट में. कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज जेड बार. ठीक है. यू जस्ट कीप इट, रिमेंबर इट. सो देखो यहाँ पे कैसे होगा? ठीक इसका ऑपोजिट में. यहाँ पे अगर डिस्टेंस 4 है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे. दैट मीन्स ये यहाँ पे होगा. यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा. सो मिरर, ये जो इमेज है यहाँ पे फॉर्म हुआ. ठीक है. अभी देखो अगर इस पॉइंट का हम लोग एक नाम दे देते हैं, इफ वी गिव ए पर्टिकुलर नेम, क्या होगा? देखो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पे कितना था? 1 2 3 था. और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4. क्योंकि ये 4 है सो ए भी 4 होगा. सो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा? बोलो तो. इस कोऑर्डिनेट का नाम होगा कि ये तो ठीक है एक्स कोऑर्डिनेट. यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट पे. और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है. तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा? 3,-4. ये जो कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? 3,4.
ये कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा 3,-4, क्योंकि ये तो सेम है। ये जो पार्ट है इसका लिए, इस नंबर के लिए A3 है, इस नंबर के लिए A भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 4 उस साइड में है और यहाँ पे नीचे है। सो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए इस नंबर का नाम है 3,-4 और इस नंबर का नाम क्या है 3,4 है। ठीक है, और दिस 3,-4 इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3,4। दैट मीन्स देखो एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट होता है कोई भी नंबर का इमेज। कॉन्जुगेट क्या होगा, कोई भी नंबर जो है उस नंबर का इमेज को हम लोग को क्या बोलता है, उस नंबर का इमेज को कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। definition, this is the definition. So we can say that conjugate of a complex number is what? Conjugate of a complex number is the image of the number. Okay, that means you see यहाँ पे जो नंबर था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 क्या हो गया, -4 हो गया। यहाँ पे नंबर क्या था 3 है, यहाँ पे नंबर ये भी नंबर 3 है। दैट मीन्स जब हम लोगों ने कॉन्जुगेट निकाला 3 सेम रहा, लेकिन 4 क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। वहाँ पे 4 प्लस था, यहाँ पे 4 माइनस हो गया। दैट मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो y कोऑर्डिनेट है उस y कोऑर्डिनेट का साइन जो है उसको चेंज करना पड़ता है, बाकी सब सेम रहेगा। सो इस नंबर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 + 4i। इस नंबर का नाम क्या है 3 - 4i, 3 - 4i। दिस नंबर इज 3 + 4i and this number is 3 - 4i, and this 3 - 4i is what? It is the conjugate of this complex number. That means if z equal to 3 + 4i, what is the meaning of z bar? Z bar is 3 - 4i. That means whenever we shall find the conjugate of a complex number, हम लोगों को क्या निकालना है, z bar निकालना है। z bar निकालने के क्या करना पड़ेगा, z bar निकालने के लिए हम लोगों को जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट का साइन को चेंज करना है। ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल देके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट, फाइंड, सो व्हाट यू कैन से, फाइंड द कॉन्जुगेट। नंबर 1, सो सपोज एक नंबर है z, ठीक है, z एक नंबर है, उस नंबर का सपोज -3 + 4i है। ठीक है, सपोज देयर इज अ नंबर z, सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, सो z bar। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय व्हाट, z bar। और ये क्या होगा, अभी मैंने बोला यहाँ पे कि जो जिस नंबर का साथ आई है उसका आगे का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सो माइनस तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे जो नंबर है इसका आगे का साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज -4i। सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये दैट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, वी हैव टू चेंज द साइन बिफोर द इमेजिनरी पार्ट। This is the conjugate of a complex number. We have to change the sign before the imaginary part. Okay. So let me give you. So this is the conjugate of the complex numbers. Okay. Now see, what is the meaning of modulus? Modulus of this complex number क्या होगा? Modulus of z is what? Modulus of z. Modulus of z. What is the meaning of modulus of z? Modulus of z is denoted by mod z. Modulus of z, इसका जो नोटेशन है, इस z को ये दो स्ट्रेट लाइन का अंदर में रखना पड़ता है। दिस इज द नोटेशन मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखो, जब ये जो नंबर है इसको अगर तुम लोग ओरिजिन का साथ जोड़ दोगे, तो ये जो लाइन प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे जो लाइन हम लोगों को मिला, इस ओ, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है, ए पॉइंट जो है इसका नाम है ए। सो ओ ए,
OA is the modulus of the complex number. OA is the modulus of the complex numbers. Okay, so how we can find this OA? This is a very simple thing. ये जो वैल्यू था कितना था 3, ये जो डिस्टेंस था वो कितना था 4. सो अगर हम लोग इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, इफ वी कंसीडर दिस वन एज ए राइट एंगल ट्राइंगल, so definitely we can find out these values. OA, what is the meaning of OA? OA means this is modulus of Z. So if we apply Pythagoras theorem, जो ऑलरेडी तुम लोग को बहुत बार मिल चुका है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से इसका वैल्यू कितना होगा रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, होगा कि नहीं? सो इसका वैल्यू होगा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. व्हाट इज द meaning? Modulus of a complex number is 3 square plus 4 square. Modulus of Z is denoted by this one and this is equal to 3 square plus 4 square. So see, that means when the point is joined with the origin, हम लोग को जो line मिलेगा, that line is called the modulus of the complex numbers. Okay, so इस पार्ट का modulus क्या होगा? Find the conjugate and modulus and modulus. Find the conjugate and modulus. Okay, find the conjugate and modulus. देखो, so what is the modulus of Z? Z अभी बोला मैंने, हम x कोऑर्डिनेट जो है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, जो y कोऑर्डिनेट है दैट मीन्स रियल पार्ट को स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे. सो रियल पार्ट को स्क्वायर करो -3 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करो 4 स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज -3 स्क्वायर -3 होल स्क्वायर इज 9, दिस इज 16. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू? 9 plus 16 is root over 25. And what is the value of root over 25? Root over 25 is only 5. So this is the modulus of the complex numbers. So हम लोग को modulus of the complex number मिल गया यहाँ से. ठीक है, so today we came to know about the conjugate of a complex numbers and also the modulus of a complex number. ठीक है, so देखो आज मैं ज़्यादा नहीं शुरू करता हूँ, जस्ट मैंने क्या किया कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया. ठीक है, मैं तो अभी 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे अबाउट द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने के लिए हम लोग को थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट आ जाएगा. सो आई विल डिस्कस द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो से देखो क्वेश्चन ऐसा होगा, find the modulus and find the modulus and conjugate. मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ. सपोज z इक्वल टू 3 प्लस 5i/2. हम लोगों को क्या करना है, इसका मोडुलस और क्या निकालना है, मोडुलस एंड कॉन्जुगेट निकालना है. ठीक है, देखो एक तो चीज हम लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, वो चीज तो क्या है, मोडुलस एंड कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम जो नंबर है इट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये a+ib में होना जरूरी है. हम लोगों को अगर कोई भी नंबर का मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकालना होगा, दैट इन दैट केस जो नंबर है उसका क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए. जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा हम लोग कभी भी इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट नहीं निकाल पाएंगे. अगर वो क्वेश्चन पे नहीं रहेगा, हम लोग को कन्वर्ट करना है, जो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया कि हम लोगों को कन्वर्ट कैसे करना है. ठीक है, इस नंबर को a+ib फॉर्मेट में कैसे लाना है, देखो इसका एकदम सिंपल तरीका है. 3/2 लिखो प्लस i को यहाँ पे लिखो 5/2 लिखो, हो गया. सो क्या हो गया, ये a+i × b फॉर्मेट में आ गया.
अगर ये I into B फॉर्मेट में आ गया, सो इट इज़ वेरी इजी नाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, मैंने अभी बोला कि जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का आगे का जो साइन है उसको चेंज करना पड़ेगा। सो बाकी सब सेम रहेगा, 3/2 है, इसका आगे का साइन क्या है, प्लस है, सो हम लोग को इसको क्या बनाना पड़ेगा, माइनस, बस खत्म। सो दिस इज आर्गुमेंट, दिस इज द कॉन्जुगेट। और उसका मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस होगा, इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करके मॉडुलस का अंडर में डालना है। सो 3/2 होल स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर दो। सो दिस इज 9/4 प्लस 25/4, है कि नहीं। सो 4 अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या होगा, 4 अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 9 प्लस 25 34/4। So this is the modulus. We have got the modulus of the complex numbers. Modulus of z is √34/4. So we have got the argument of the conjugate of the complex numbers. We have got the modulus of the complex numbers. Clear? I think you have no confusions. So हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, तब तुम लोग को ज़्यादा याद रहेगा। सपोज एक नंबर है z, लेट z इक्वल टू प्लस आई, ठीक है। So conjugate of z, you can write it as a formula, conjugate of z is denoted by z bar। ये क्या होगा, i का जो आगे का साइन है उसको चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज a माइनस आई बी। और क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z, क्या होगा फॉर्मूला, जो रियल पार्ट है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट बी है, उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सो दिस इज √² प्लस b स्क्वायर। सो यू कैन रिमेंबर इट एज ए फॉर्मूला। व्हाट इज द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z इज a माइनस b एंड मॉडुलस ऑफ z इज √² प्लस b स्क्वायर। लेकिन इसको निकालने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको निकालने के लिए हम लोग का जो जरूरी चीज है, वो जरूरी चीज तो क्या है, जरूरी चीज तो यही है कि इट शुड बी इन द what, it should be in the standard form. Then only we can find the conjugate and modulus of the complex numbers. Clear? So मैं तुम लोग को अभी थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। सो इसको निकालने, फाइंड द मॉडुलस एंड conjugate number 1, z equal to 2 minus 3i. Number 2, z equal to minus 3 plus 4i. Number 3, z equal to minus 7 minus 6i. So this is the question number 3. और एक क्वेश्चन लगाता हूं, वो क्वेश्चन क्या होगा, नंबर 4, z इक्वल टू होगा 3 प्लस 2i, 3 माइनस लगा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे माइनस 2i बाई 5। नंबर 5, और एक क्वेश्चन कर देता हूं यहाँ पे, z इक्वल टू 3 माइनस 2i बाई 5 4 प्लस 3i। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखो ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या नहीं है, ये a प्लस आई बी फॉर्मेट में नहीं है। ऑलरेडी मैंने क्लास कल बोल दिया था तुम लोगों को कि a प्लस आई बी में कैसे कन्वर्ट करना है, बाय रेशनलाइज। सो पहले इसको रेशनलाइज करके a प्लस आई बी में लेके आओ, फिर जाके उसका कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस निकालो, ठीक है। सो फर्स्ट यू कन्वर्ट इट टू व्हाट, first you convert it to a plus ib form. After that only you can find the conjugate and the modulus of the complex numbers. Okay, so these are your homework. You complete the homework. In the next class I will start the argument of the complex numbers. Okay, thank you.